Ignited Minds Tutorials, a leading online educational platform, has recently released a captivating video about the chapter Reaching the Top for CBSE Class 9. This enlightening video dwells on the incredible journey of tennis legend Maria Sharapova. The chapter delves into the life of Maria Sharapova, a remarkable athlete who overcame numerous challenges to achieve greatness in the world of tennis. The video begins by shedding light on Maria's early years and her unwavering passion for the sport. It highlights her dedication, determination, and resilience in the face of adversity. The video delves into Maria's rise to prominence, exploring her pivotal victories and the numerous records she shattered along the way. It emphasizes the importance of hard work, discipline, and a strong mindset in reaching the pinnacle of success. Moreover, the video addresses the sacrifices Sharapova made throughout her career, including time away from loved ones and rigorous training regimes. It emphasizes the significance of perseverance and staying motivated even in times of hardship. By providing insightful explanations, visuals, and expert commentary, Ignited Minds Tutorials offers a comprehensive understanding of the chapter Reaching the Top. This knowledge-rich video enables students to gain valuable insights from the inspiring journey of Maria Sharapova, encouraging them to pursue their passions with determination and dedication. In conclusion, this educational video by Ignited Minds Tutorials serves as an invaluable resource for students studying the chapter Reaching the Top. It offers a detailed analysis of Maria Sharapova's exceptional journey, motivating and inspiring students to aim for greatness in their own lives. Okay, people, we will start with this chapter. ये रीचिंग फॉर द टॉप का पार्ट 2 है और रीचिंग फॉर द टॉप पार्ट 2 में हम बेसिकली एक टेनिस प्लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, who dominated the tennis world, women tennis player basically, women tennis player. Her name is Maria Sharapova, ठीक है, Maria Sharapova, and she dominated the entire tennis. Do we all know what is tennis? लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं. तो एक होता है आपका टेबल टेनिस और एक होता है लॉन टेनिस. लॉन टेनिस में देखो ऐसा एक आपका बीच में आपका नेट होता है और बहुत बड़ा फील्ड होता है, ठीक है, और यहाँ से भाई साहब 2 प्लेयर्स होते हैं. तो आपके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं लॉन टेनिस में, ठीक है. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट. एज यहाँ पे इंडिया में ये प्ले होता है लेकिन हम कभी भी क्वालिफाई नहीं करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल्स पे compete करने के लिए, ठीक है. देयर आर 2 प्लेयर्स, रिनोन्ड इंडियन प्लेयर्स, एनीबडी नोज देयर नेम, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे चैंपियनशिप्स जीती हैं. लिएंडर पेस, ठीक है, लिएंडर पेस, एंड द अदर वन इज महेश भूपति, ठीक है. दीज आर द 2 प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स बेसिकली, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे चैंपियनशिप्स जीती हैं, ठीक है. लेकिन इंडिया में बहुत कम ही लोग इसको खेल पाते हैं. बहुत सारे टेबल टेनिस कोर्ट्स हैं, मुंबई में भी है, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में भी लॉन टेनिस कोर्ट है, बहुत सारे. ये आपका जो क्या कहते हैं नेरुल का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे भी लॉन टेनिस क्लब है, ठीक है. प्रॉब्लम ये है कि ये जो गेम है ये हैवी स्टैमिना का गेम है. इट रिक्वायर्स सम वेरी हैवी स्टैमिना, ठीक है. मतलब ये इंडिविजुअल गेम है, सोलो गेम है, ठीक है. एक इंडिविजुअल या सोलो गेम बोल सकते हैं हम इसको. इट्स बेसिकली एन इंडिविजुअल और सोलो गेम है और काफ़ी स्टैमिना लगता है. मतलब आप सोचिए एक बॉल को आप टेनिस रैकेट से उतनी दूर तक फेंक रहे हैं. आप जब बॉलिंग करने लगते हैं, मतलब बॉल को फेंकने में कितना दूर का रनअप लेना पड़ता है, फिर भी उसको बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा 6 बॉल्स डालने रहते हैं, है ना, एक ओवर में. उसके बाद तो उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, फिर वो डालेगा. तो कम से कम उसको 6 बॉल का तो रेस्ट मिलेगा ना, 6 बॉल ही डालेगा वो. लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस लगे रहो भाई साहब जब तक आप जीत नहीं रहे. और प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी मैच खिंच जाता है. तो एक सेट आया, एक सेट में एक जन जीता, दूसरे सेट में दूसरे जन जीता, तीसरे सेट में भाई साहब ड्रॉ हो रहा है, मैच खिंच जाएगा भाई साहब, ठीक है. बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5 ऐसा होता रहता है और मैच कभी कभी बहुत ज़्यादा खिंच जाता है. प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जैसे दूसरे गेम्स में आप थके भी होंगे तो आपके टीममेट्स में कोई ना कोई भाई साहब एक्टिव रहेगा, है ना. समझ लो मैं फील्डिंग खराब कर रहा हूँ लेकिन कोई दूसरा तो फील्डिंग संभाल रहा है ना. 10 प्लेयर्स हैं बॉल को रोकने के लिए, है ना.
चलो गया, मेरे से एक मिस हो गया, लेकिन बाकी 10 प्लेयर्स तो हैं जो हैंडल कर लेंगे चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। ये भाई साहब सोलो गेम है, और सोलो गेम में बहुत स्टैमिना लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट थका देने वाला गेम है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट हैवी स्टैमिना, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग गेम्स व्हेन यू रिक्वायर वेरी हैवी स्टैमिना, ठीक है। बार बार ऐसे बॉल को सिर्फ रैकेट से मार के उतनी दूर तक फेंकना, आप समझिए 22 यार्ड का एक क्रिकेट पिच होता है, और कोई फास्ट बॉलर या स्पिनर अगर बॉल को हाथ से फेंक रहा है तो कितना दूर का रनअप लेना पड़ता है, फिर जाकर उस बॉल जाती है। इससे भी ज़्यादा आपका यार्ड होता है टेनिस में। टेनिस में आपको भाई साहब ऐसे बार बार सर्विंग करनी पड़ती है, बैक हैंड स्ट्रोक, ये तो काफ़ी सारा इसमें। आप अगर टेबल टेनिस देखेंगे तो वो उतना ज़्यादा एग्जैजरेटिंग नहीं है। टेबल टेनिस भाई साहब एक टेबल होता है और प्लास्टिक की बॉल होती है, टाक टुक भाई साहब लगे पड़े, उतना ज़्यादा उसमें नहीं होता है, ठीक है। उतना ज़्यादा आप थक नहीं जाएंगे उसमें। लॉन टेनिस बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटिंग गेम है, ठीक है। ये इंडिया के ये 2 प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं। कुछ लोगों का भाई साहब यहाँ पे डोमिनेंस है, तो बहुत सारे चैंपियनशिप्स होते हैं। एक होता है भाई साहब आपका जो मेजर चैंपियनशिप होता है भाई साहब, वो होता है विंबलडन। ओलंपिक्स तो होता ही है, ओलंपिक्स लेवल पे तो ये होता ही है 4 साल में। विंबलडन होता है, फिर आपका होता है भाई साहब फ्रेंच ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप्स होती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप्स होती हैं। ये सब वर्ल्ड लेवल पे चैंपियनशिप्स होती हैं, ठीक है। अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। कहीं पे भाई साहब ग्रास कोर्ट होता है, ठीक है। ग्रास कोर्ट मतलब जो आपका पिच है वो ग्रास से बना रहेगा। कहीं भाई साहब आपका क्ले कोर्ट होता है, ठीक है। अलग अलग पिचेस होती हैं, और काफी डिमांडिंग गेम है ये, काफी डिमांडिंग गेम है, मतलब बहुत ज्यादा आपका एग्जैजरेशन होगा इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे तमाम प्लेयर्स हुए हैं जिन्होंने इसमें काफी सारी, तो आपके जो गेम है उसमें एक होता है भाई साहब आपका मेंस सिंगल्स, ठीक है। एक होता है भाई साहब आपका मेंस सिंगल्स, ठीक है। मेंस सिंगल्स मतलब इधर एक और इधर एक, दोनों भी मेन रहेंगे, और ये मेंस सिंगल्स होगा, ठीक है। फिर दूसरा होता है भाई साहब आपका वुमेन्स सिंगल्स, ठीक है। ये वुमेन्स सिंगल्स होता है। तीसरा होता है भाई साहब आपका मेंस डबल्स, ठीक है। मेंस डबल्स मतलब 2 प्लेयर होंगे, टोटल 4 प्लेयर होंगे मैच में, 2 इधर 2 इधर, मेंस डबल्स होता है, ठीक है। चौथा होता है भाई साहब आपका वुमेन्स डबल्स, ठीक है। और 5वां होता है आपका मिक्स्ड डबल्स, ठीक है। मिक्स्ड डबल्स मतलब एक मैन और एक वुमेन एक टीम में, ठीक है। सो ये अलग अलग, ये कंट्री वाइज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये अलग अलग चैंपियनशिप्स होती हैं, मेंस सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स, मिक्स्ड डबल्स, ठीक है। आपके मेंस के डबल्स में लिएंडर पेस ने चैंपियनशिप जीता था, महेश भूपति ने भी उसी में जीता था, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। तो ये सारे आपके वर्ल्ड लेवल पे चैंपियनशिप्स होती हैं, ठीक है। बहुत ही आपका स्टैमिना कंज्यूमिंग गेम है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग गेम्स इन टर्म्स ऑफ स्टैमिना, ओके। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, शी वाज बेसिकली अ रशियन, ठीक है। समथिंग एट ऑड्स विद अ रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, ठीक है। तो बहुत ही मतलब डिसआर्मिंग मतलब क्या होता है भाई साहब? डिसआर्मिंग मीन्स समथिंग, डिसआर्मिंग मीन्स क्विकली, ठीक है। फर्क से मतलब जैसे अटेंशन ग्रास्पिंग होते हैं, कुछ लोगों को देखने से ही अटेंशन आता है, ठीक है। सो देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद अ रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, ठीक है। शी यूज्ड टू बी अ वेरी फिट एंड फाइन स्पोर्ट्समैन। कोई भी टेनिस प्लेयर भाई साहब उसको बहुत ज्यादा फिट एंड फाइन होना पड़ेगा, कोई मोटू तोंद लेकर भाई साहब टेनिस नहीं खेल सकता, ठीक है। ही और शी हैज टू बी वेरी फिट एंड फाइन, मतलब इतना ज्यादा डिमांडिंग गेम है ये आपके फिजिकल फिटनेस पे कि आप थोड़े से भी ओवरवेट नहीं हो सकते हैं। आपको भाई साहब डाइट भी उस तरीके का लेना पड़ेगा, काफी सारा भाई साहब आपका एक्सर्शन है इस गेम में, ठीक है। ग्लैमरस अटायर एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। तो आप देखते होंगे जैसे आपका क्रिकेट होता है, ठीक है। क्रिकेट में आपके नंबर 1 प्लेयर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे टाइम पे विराट कोहली वुड बी नंबर 1 बैट्समैन, ठीक है, और नंबर 1 ऑलराउंडर, नंबर 1 फील्डर, ठीक है। इस तरह की रैंकिंग्स होती हैं। नंबर 1 टीम भी होता है, ठीक है, अलग अलग टीम्स में। तो ये रैंकिंग्स होती है, आईसीसी रैंकिंग्स देती हैं क्रिकेटर्स को भी और क्रिकेट टीम्स को भी। वैसे ही आपके लॉन टेनिस में भी वर्ल्ड रैंकिंग्स होती हैं, ठीक है। तो मतलब सी ऑन 22 अगस्त 2005 शी बिकेम वर्ल्ड नंबर 1, ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने चैंपियनशिप जीते हैं, ठीक है, कैसे वो खेलते हैं। सो शी बिकेम वर्ल्ड नंबर 1, ठीक है।
ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, फटाफट हुआ था ये, ठीक है, ऑलमोस्ट नो टाइम. Poised beyond her years, the Siberian born teenager, poised beyond her years मतलब sent off, ठीक है, बहुत यंग एज में ही इन्होंने इसको खेलना चालू कर दिया था, लॉन टेनिस को खेलना चालू कर दिया. शी टुक दिस एज हर करियर, ठीक है. पॉइज्ड बियॉन्ड हर इयर्स, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर. रशिया में एक स्टेट है जिसका नाम है भाई साहब साइबेरिया, ठीक है. रशिया में एक स्टेट है जिसका नाम है साइबेरिया. बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल. 4 साल में ये भाई साहब एकदम टॉप पे आ गई, ठीक है. इट टुक जस्ट 4 years टू रीच द टॉप, ठीक है, टू रीच द टॉप. तो 4 साल में ही ये भाई साहब टॉप पे आ गए. जब वो इंटरनेशनल लेवल पे टेनिस खेलने लगी तो 4 साल में ही वो भाई साहब टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ गई, ठीक है. तो दैट्स हाउ दिस जर्नी हैज बीन फॉर हर. Okay, so this is basically Wimbledon. Maria Sharapova won the women's singles at Wimbledon in 2004. जैसे मैंने आपको बोला, गेम के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, मेंस सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स एंड मिक्स डबल्स. ये 5 फॉर्मेट हैं इस गेम के, ठीक है. तो विम्बलडन जो होता है वो भाई साहब बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा आप बोल सकते हैं विम्बलडन इज द मोस्ट, विम्बलडन जो है वो सबसे ज्यादा हाई लेवल पे खेला जाने वाला गेम है. सबसे ज्यादा पॉइंट्स वहीं पे मिलते हैं, ठीक है. विम्बलडन बेसिकली आपका खेला जाता है, ठीक है. और बड़ा ही कल्चर्ड गेम है. मतलब कैसा है कि आप दूसरे स्टेडियम्स में कुछ भी चिल्लम चिल्ली कर सकते हो, ठीक है, किसी को भी चिढ़ा सकते हो, ऐसा कर सकते हैं एज एन ऑडियंस, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है. यहाँ पे भाई साहब प्रॉपर आपका कोर्ट होता है. आप किसी को भी कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं. आपको रेफरी बाहर निकाल देगा एज एन ऑडियंस एज वेल अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो, ठीक है. तो बहुत कल्चर्ड गेम है, ठीक है, बहुत ही कल्चर्ड गेम है. तो शी वन द वुमेन सिंगल्स इन विम्बलडन इन 2004. हाउएवर द रैपिड एक्सेंट इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगैन 9 years. एसेंट मतलब क्या होता है, चढ़ाव, ठीक है. सो ये जो भाई साहब उसके करियर में 4 साल में उसने एकदम टॉप पोजीशन हासिल किया. ये शुरुआत कहां से हुआ, द रैपिड एसेंट. रैपिड एसेंट मतलब बहुत तेजी से जो वो ऊपर चढ़ी, वो कहां से हुआ, इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. फियर्सली कॉम्पिटिटिव मतलब इस गेम में बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी जुड़े थे, ठीक है. फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगैन 9 years बिफोर विद अ लेवल ऑफ सैक्रिफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर. आपको लगता होगा कि आपको पढ़ाई में बहुत सारा सैक्रिफाइस करना रहता है ना, मे बी, ठीक है. अरे यार कहाँ मैं थोड़ा सा टीवी देख लेता, हाँ कहाँ मैं थोड़ा सा मोबाइल देख लेता, या कहाँ मैं थोड़ा सा ही खेल लेता. उन सबको सैक्रिफाइस करके मुझे पढ़ना पड़ रहा है. होता नहीं है वैसे भी, ठीक है. एक जस्ट एन आइडियल सिनेरियो कि आप 2 घंटा पढ़ रहे होंगे. ऐसा अगर आकस्मिक कई घटना घट गई, ठीक है, आपके जीवन में, तो लेट्स अज्यूम कि आप 2 घंटा पढ़ रहे होंगे. तो उस 2 घंटे में आप खेल सकते थे, आप दोस्तों के साथ आलतू फालतू बातें कर सकते थे, ठीक है. आप भाई साहब इधर उधर घूम सकते थे, आवारागर्दी कर सकते थे, है ना. तो उस 2 घंटे में आपको पढ़ना पड़ा. तो मे बी इट सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस एज अ स्टूडेंट, बट रिमेंबर दिस, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन you have to sacrifice very on a very high level. बहुत ऊपर लेवल तक आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. इस चीज़ को सोचो क्यों, ठीक है. आप समझ लिए आपका इंडियन क्रिकेट टीम है, लेट्स से 11 खिलाड़ी हैं. 11 खिलाड़ी हम सब कुछ लेकर 20 खिलाड़ी मान लें. 20 खिलाड़ी जा रहे हैं भाई साहब. हर बार जब भी कोई चैंपियनशिप होता है 15 लोगों की टीम उतरती है, ठीक है. 20 मान लेते हैं चलो. ये जो 20 खिलाड़ी आप चुन रहे होंगे, या समझ लो भाई साहब IPL लेवल सब कुछ लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 50 खिलाड़ी, है ना. इन 50 खिलाड़ियों का चयन कहाँ से हो रहा है भाई साहब, 100 या 150 करोड़ की जनता से हो रहा है, ठीक है. 135 करोड़ के हम हैं, 135 करोड़ में ये 50 खिलाड़ी चुने जा रहे हैं. तो कंपटीशन का लेवल समझते हैं आप, ठीक है. हर एक बंदा आपको टपका के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है. सो अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कंपटीशन. और इस कंपटीशन से आपको भिड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. स्पोर्ट्स से हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाना बहुत डिफिकल्ट है. समझ में आ रहा है. स्पोर्ट्स भाई साहब आप खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलने के लिए मज़ा आ रहा है, उसके लिए खेल रहे हैं. लेकिन अगर स्पोर्ट्स में आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे उतरते हैं तो हाईएस्ट लेवल पे जाना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है. आप समझिए ना, 50 की अगर टीम होगी, 50 लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते होंगे इंडिया में, या IPL लेवल पे खेलते होंगे,
उनका चयन 135 करोड़ में हुआ है। परसेंटेज सोचिए कितना होगा, 135 करोड़, ठीक है। वीजा बेस अगर आप सोचोगे कि भाई साहब इंडिया में एक डॉक्टर 1000 लोगों में बनता है, काफ़ी कम रेशियो है ना। एक इंजीनियर भाई साहब 50 लोगों में बनता है, काफ़ी कम रेशियो है, काफ़ी कम रेशियो है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई भले ही आपको बोरिंग लगे, लेकिन आपका सिलेक्शन रेशियो इज मच हाइयर देन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो है वो एकदम, कुछ लोग तो दम तोड़ देते हैं भाई साहब। देयर आर सो मेनी प्लेयर्स who have not been selected to the Indian national team or maybe not in the IPL and they have just gone there, ठीक है। मतलब उनका तो ना पढ़ाई हुआ और ना खेल कूद हुआ भाई साहब। तो मैक्सिमम एकदम टॉप लेवल पे पहुंचना इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेडिकेशन। जितना आपका पढ़ाई पे डेडिकेशन लगता होगा ना, उसके कम से कम 60 गुना ज़्यादा लगता होगा स्पोर्ट्स पे, 60 से 70 गुना ज़्यादा लगता होगा, ठीक है। आपका डाइट, आप अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो कुछ भी खा पी सकते हैं, हाँ मतलब उल्टा सीधा नहीं कि आप बीमार पड़ जाएं, लेकिन उतना ज़्यादा आपको रेगुलेशन में नहीं रहना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में आप कहीं पे भी होंगे, आपका डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके डाइट में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होना चाहिए, कैलोरीज जितनी कम हो उतनी अच्छी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप वो फैट पकड़े, ये सारा चीज़ लगता है आपको। सिर्फ मेहनत ही नहीं, आपका डेडिकेशन हर चीज़ में, आपके स्लीप आवर्स क्या हैं, ठीक है, आपका मसल भाई साहब जो है वो रिकवर कर पा रहा है या नहीं, आप उसको सही टाइम अलाउ कर रहे हैं नहीं, फिर आपके इंजरीज तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हर स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में इंजरीज इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। कोई भी बड़े स्पोर्ट्समैन को ले लो, सचिन तेंदुलकर को ले लो भाई साहब, या किसी फुटबॉलर को ले लो, या किसी भाई साहब बास्केटबॉल प्लेयर को ले लो, एवरीबडी हैज़ बीन मार्ड विद इंजरीज इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। इंजरीज होंगे ही होंगे क्योंकि मसल को आप बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। एक मतलब मसल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और मसल का क्रैम्पिंग होना लाजमी है, ठीक है। वो होगा ही, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो आपका मतलब देयर इज नो स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ नॉट गॉन अंडर द नाइफ। ऐसा कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होगा जिसका भाई साहब कोई ऑपरेशन ना हुआ रहेगा, मसल रिलेटेड, नर्व रिलेटेड ऐसा कोई ऑपरेशन ना हुआ रहेगा, होगा ही होगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली होगा ही होगा, ठीक है। सो स्पोर्ट्स में सक्सेस पाना इवेंचुअली बहुत मुश्किल होता है। माइकल फेल्प्स वाज वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। 8 गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने एक बार के ओलंपिक्स में, 8 गोल्ड मेडल। सो माइकल फेल्प्स वाज सो एग्जैक्ट, मतलब आप सोचिए वो उस बंदे ने किस लेवल की प्रैक्टिस की रहेगी। स्विमिंग उसके लिए मतलब एक जैसे यूसेन बोल्ट है भाई साहब, वो आपको लगता है बड़े आसानी से वो दौड़ रहा है, लेकिन भाई साहब उसके पीछे बहुत बड़े प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत। कभी आपने देखा यूसेन बोल्ट को दौड़ते हुए 100 मीटर रेस में कितना ही गैप छोड़ता है, वो कितना गैप छोड़ता है जो उसका सेकंड रहता है या सेकंड या थर्ड से काफ़ी ज़्यादा लीड लेता है। माइकल फेल्प्स ऑल्सो वाज द सेम, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक स्विमिंग पूल में कितना ही घंटा व्यतीत कर पाएंगे नॉर्मली, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। माइकल फेल्प्स वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू बी इन द स्विमिंग फॉर मोर देन 10 आवर्स डेली। वो ऑलमोस्ट एक्वेटिक हो चुका था, ऑलमोस्ट एक्वेटिक हो चुका था। आप भाई साहब थोड़ा आधा घंटा अपना हाथ पानी में रखेंगे ना तो सिकुड़ जाएगा ऐसा, ठीक है, कैसा हो जाएगा आपका, ठीक है। यू बिकॉज योर बॉडी इज नॉट अडेप्टेड टू लिव अंडर वाटर, ठीक है। सो दैट इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड। स्पोर्ट्स में डेडिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा, पढ़ाई से भी काफ़ी ज़्यादा। स्पोर्ट्स आप अगर रिफ्रेशमेंट के लिए खेल रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपको भाई साहब मज़ा आ रहा है, खेल रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ गुड। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में ऊपर लेवल तक जाना चाहते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पढ़ाई से 60 क्या 70 क्या 80 क्या 100 गुना ज़्यादा आपको डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, so sacrifice actually began in her life at a very early stage. Little Maria had not even yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to a train in the United States. तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में गई, although she belonged to Russia, but she had gone to United States for practice, ठीक है। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom, but it also required, तो ये लॉन्चिंग पैड था उसके लिए, मतलब यहाँ से उसका लॉन्चिंग हुआ। शी बेसिकली वॉज लॉन्च्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ टेनिस, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2-year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना, ठीक है। अभी 10 साल की बच्ची है भाई साहब, अपने माँ से बिछड़ गई है, ठीक है। तो 2-year सेपरेशन, 2 साल तक उसने माँ की शक्ल नहीं देखी, ठीक है। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. तो उसके पापा को वीज़ा मिला था लेकिन उसकी माँ को वीज़ा नहीं मिला था, तो उसकी माँ को उसमें मतलब साइबेरिया में रहना पड़ा। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life.
that tennis excellence would come at a price. And what was the price? To leave the family behind. ठीक है, she would get separated from the family. ठीक है, I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going. तो उसके फादर भाई साहब ज़्यादा काम कर रहे थे ताकि पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि टेनिस का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम्स है ये, क्योंकि टेनिस का कोड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ही कुडंट सी मी इधर. पापा भी भाई साहब मेरे लिए कमा रहे थे तो वो भी मेरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे. Because I was so young, I used to go bed at 8 p.m. The other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. तो मैं तो वहाँ पे रहती थी जिस मेस में मैं रहती थी. ठीक है, 8 बजे मैं भाई साहब सो जाती थी, क्योंकि मेरा कोई ये नहीं, मतलब मेरे को किसी से बात नहीं करना है. लेकिन बाकी लोग आते थे 11 बजे और मुझे उठा देते थे और बोलते थे कि चलो रूम साफ करो. ठीक है, सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ बुलिंग दैट हैपेंड. Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. ठीक है, तो ये मुझे डिप्रेस नहीं कर रहा था. ये जो था कि मैं अपने माँ से नहीं मिल पा रही हूँ, मेरे पापा मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं. ठीक है, और मैं फैमिली से, भाई साहब मेरा फैमिली ऐसा नहीं है कि भाई साहब मैं मुंबई में रहती हूँ और पूना में मेरा फैमिली है, ऐसा भी नहीं है. एक अलग कंट्री में मैं हूँ और मेरी माँ जो है वो अलग कंट्री में है. ठीक है, सो ऑब्वियसली आई वॉज डिप्रेस्ड अबाउट इट. लेकिन यही शायद मेरे को अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग बना रहा था. दिस वॉज बेसिकली मेकिंग मी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड एंड मेंटली टफ. एंड दिस वॉज मेकिंग मी मेंटली टफ. जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत टफ गेम है, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल टफनेस और मेंटल टफनेस की ज़रूरत है. ठीक है, इस गेम के नियम क्या है समझ लो. 1 पॉइंट मैं जीता तो ये हो गया भाई साहब आपका 15-0. 1 पॉइंट आप जीते तो ये हो जाएगा भाई साहब 15 ऑल. ठीक है, दूसरे में आएगा भाई साहब 30 ऑल. ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है भाई साहब 40. फिर होता है भाई साहब ड्यूस. ड्यूस मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब कि दोनों का सेम पॉइंट हो गया. ठीक है, फिर ड्यूस के बाद एक और एडवांटेज. जैसे अगर समझ लो मैं और सूरज खेल रहे हैं भाई साहब लॉन टेनिस. ठीक है, तो लेट्स से मी एंड सूरज. तो अगर मैंने पहला जीता तो 15-0. ये पहला जीतना मतलब कैसा है, टाप टूप सूरज से एक मिस हो गया. ठीक है, अगर सूरज वो नहीं मार पाया तो उसका 0 हो जाएगा. अगर दूसरी बार वो जीता तो अगेन 15 ऑल हो गया. ठीक है, अभी समझ लो फिर से मैं जीता तो ये हो जाएगा भाई साहब 13-30-15. फिर से वो जीता तो ये हो गया 30-30. आप समझ नहीं पाओगे, इस कार्यक्रम में ही करीब 45 to 60 मिनट्स लग जाएंगे. इस कार्यक्रम में ही 45 से 60 मिनट लग जाएंगे. 1 घंटा यहीं पे चला जाएगा. ओके, अभी समझ लो इसके बाद आता है भाई साहब मैं 40 पे आ गया. ठीक है, 30 के बाद 40 आता है पॉइंट. ऐसा है पॉइंट का स्कीमिंग. ये फिर ये भी आ गया भाई साहब, ये जीता तो 40 लव हो गया. इसको हम 0 को लव. 40-30 हो गया भाई साहब. फिर अभी क्या हो जाएगा 40. लेट्स से ही विंस 40-40. अभी इसको हम बोलते हैं ड्यूस. दिस इज नोन एज ड्यूस. अभी भाई साहब मैच आड़े पे आ गया है, मतलब इसके बाद कोई आगे नहीं जा रहा है. ठीक है, तो समझ लो इसके बाद मैं जीता तो भाई साहब एडवांटेज हो जाएगा. एडवांटेज मतलब इसके बाद वाला भी अगर मैं जीता तो वो सेट में जीतूंगा, मैच नहीं. ठीक है, समझ लो सूरज भी आ गया फिर से तो फिर से ड्यूस हो जाएगा. फिर से जिसको एडवांटेज, फिर से तो ये खिंचता जाएगा भाई साहब. फिर से किसी को एडवांटेज, फिर से किसी, तो ऐसा होता है भाई साहब. तो सेट जो है जीतना, तो इस तरह से आपके बेस्ट ऑफ 3 होता है. बेस्ट ऑफ 3 आप अगर देखोगे भाई साहब, ये बेस्ट ऑफ 3 रीच करते करते प्लेयर की हालत खराब हो जाती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना की जरूरत है इसमें. ठीक है, आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड. तो यही चीज़ मेरे को अंदर ही अंदर और मजबूत कर रहा था. मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे मम्मी पापा मेरे से दूर हैं और मैं एक ऐसे जगह पे रहते हूँ जहाँ पे मैं तो 8 बजे सो जाती हूँ लेकिन मुझे 11 बजे जगा दिया जाता है ताकि भाई साहब रूम क्लीन करे. ये सारी चीज़ें मुझे अंदर ही अंदर मजबूत बना रही थी. ठीक है, व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड. ये भाई साहब आपको बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है, ठीक है, मुझे ये लगता है कि एकेडमिकली या किसी भी इंसान का जो परिवेश है वही उसको बनाता है. ठीक है, उसको कितना मिला है वो उसको नहीं बनाता है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो उसको बनाता है. ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में अगर बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस है या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, वो इंसान आगे बढ़ना ही बढ़ना है. ठीक है, दैट पर्सन विल गो हैड. इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अपने जीवन में स्ट्रगल लेकर आएँ. ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बन गया. ठीक है, इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड. यू फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, तो मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था. इन दैट पर्टिकुलर न्यू
country she had nothing, ठीक है, no relatives, nothing. You come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. तो आपको ये बहुत hungry बना देता है, determined बना देता है. I would have put up with so much humiliation and insults that to steadfastly pursue my dream. ठीक है, इतना ज़्यादा इंसल्ट हुआ मेरा, इतना ज़्यादा भाई साहब मेरे साथ मतलब सख्ती बढ़ती गई, फिर भी मैंने सब कुछ सह लिया क्योंकि मुझे अपना ड्रीम परस्यू करना था. ठीक है, आई हैड लेफ्ट मेनी थिंग्स बिहाइंड. आई हैड लेफ्ट माई मदर बिहाइंड. My father was working extremely hard to make me a world renowned tennis player, so a lot of things were invested on me. So all these difficulties or struggles that I was facing, I had put them all aside and I was in deep love with tennis to make myself the world number one. The toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon. Wimbledon एक जगह है और इस चैंपियनशिप को भाई साहब विम्बलडन का चैंपियनशिप बोलते हैं. टेनिस वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैंपियनशिप होता है ये. ठीक है, इन 2004 एंड टू हर मेटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर. मेटियोरिक राइज मतलब सबसे ऊपर गया भाई साहब. ठीक है, तो मतलब ये 9 सालों में इसने अपने आप को पूरा मैन्युफैक्चर कर लिया था वर्ल्ड नंबर 1 बनने में. ठीक है, और उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उसमें. ठीक है, विथ हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया. साइबेरिया को भाई साहब वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंट्रीज माना जाता है. कंट्रीज नहीं बोलेंगे हम, स्टेट ऑफ रशिया. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आधे से ज्यादा टाइम आपका बर्फ रहता है. साइबेरिया में एक जगह है जिसको हम वर्कोयांस्क बोलते हैं. ठीक है, वर्कोयांस्क, अभी मैं इसका शायद स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एक टाइम था जब इसको दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट एरिया माना जाता था. ठीक है, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड -37 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, -37 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होता है साइबेरिया. ठीक है, to the summit of women's tennis. ठीक है, with her journey from the frozen plains of Siberia to the summit मतलब एकदम epitome of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. For the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. No room for sentiment मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, इमोशनल चीजों के लिए उसके पास टाइम नहीं था, है ना. There is no room for sentiment. सेंटिमेंट मतलब ये जो परिवार को छोड़कर आए हैं या भाई साहब कोई नहीं है यहाँ पे, इस सब से दुखी होने के पास उसके लिए टाइम नहीं था. इन सब चीजों से दुखी होने का उसके पास टाइम नहीं था. ठीक है, द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसिडर्स द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट. ठीक है, तो आज की तारीख में जो इतने बड़े लेवल पे वो पहुंच गई, तो उसको क्या सबको ही लगेगा कि जितना भी सैक्रिफाइस उसने किया इट वाज वर्थ इट. ठीक है, आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. I work hard at what I do. It's my job. This is mantra for success. ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने अपने जीवन के, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आपने अपने जीवन के 3 साल किसी एक चीज पे डेडिकेटेडली दे दिया तो सक्सेस आना ही आना है. डेडिकेटेडली, है ना. ऐसा नहीं कि वैसा पन्ने पलट रहे हो. ठीक है, पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, आपने अगर उस चीज़ में अपने जीवन के 3 साल, मिनिमम 3 साल दे दिए डेडिकेटेडली, मतलब विद एन इंटेंशन टू क्रैक इट, विद एन इंटेंशन टू रीच द टॉप मोस्ट लेवल, ये अगर आप में मतलब जुनून बना रहा और आप भाई साहब एक भी दिन उसके लिए प्रैक्टिस करने में मिस आउट नहीं करते हो, यू विल अचीव व्हाट यू डिज़ायर. ये साइंटिफिकली प्रूवन है. 3 साल. ठीक है, और इन्होंने भाई साहब अच्छा खासा 9 साल दिया था. ठीक है, दिस वॉज हर मंत्रा फॉर सक्सेस. आई वॉज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू. इट्स माई जॉब. ये भाई साहब हो जाएगा द सक्सेस मंत्रा. हमको लगता है कि भाई साहब किसी अच्छे कोचिंग क्लास में ज्वाइन कर लिया तो हमारे स्टडीज़ में इंप्रूवमेंट आ जाएगा. कोई क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली तो भाई साहब हमारा बल्ला सचिन की तरह घूमेगा. ऐसा नहीं होता भाई साहब. ठीक है, दिस इज़ नॉट द वे. ठीक है, किसी चीज़ को ज्वाइन करना और वाकई में उसको शिद्दत से फॉलो करना, उस लेवल तक जाना, इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी. आप किसी फुटबॉल क्लब को ज्वाइन करें, क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करें, एकेडमी को ज्वाइन करें, कोई अच्छा कोचिंग क्लास, इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी चेंज इन यू अनटिल एंड अनलेस यू हैव दैट परसूट. आपको अगर एक्सीलेंस का परसूट नहीं है तब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, और उसके लिए बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस की ज़रूरत पड़ती है. इमोशनल सैक्रिफाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल सैक्रिफाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है. तमाम दुनिया आपकी उम्र में जिन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है उन सब चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, और यही सत्य है. जो लोग अचीव करते हैं उनके लिए भाई साहब यही है और कुछ नहीं है.
ठीक है, दे विल हैव टू। एक टॉपर, अगर मैं बोलूं स्टडीज की बात करूं, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं स्टडीज की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स गाय, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ टॉपर मे बी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड एन एवरेज स्टूडेंट? एक सिंपल सा ही डिफरेंस है, एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि एक टॉपर जो है वो 2 सवाल और ज्यादा लगाएगा या 3 सवालों में और ज्यादा अपना कॉन्सेंट्रेशन देगा। आप आधे घंटे में दम तोड़ देंगे, या कोई एवरेज स्टूडेंट भाई साहब ज्यादा ज्यादा 45 मिनट तक खींच लेगा, लेकिन एक टॉपर 15 मिनट और, आधा घंटा और। दैट इज द पुश, दैट इज द ओनली डिफरेंस, दैट इज द ओनली डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। एक टॉपर कोई भाई साहब जन्नत से उतरा हुआ इंसान नहीं है, आपकी तरह ही है। आपको जितना दिमाग है, आपकी जितनी कैपेबिलिटीज हैं, उसको भी उतना ही है। कभी भी ऐसा मत समझना कि अरे यार मेरे से थोड़ी होगा, वो टॉपर है भाई साहब, ओहो तुम तो टॉपर हो, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है। टॉपर में ज्यादा ब्रेन है ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट ही हैज प्रैक्टिस्ड हिमसेल्फ। वो आपसे आधा घंटा ज्यादा खींच सकता है गाड़ी को, वो आपसे 45 मिनट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से उन चीजों को कर सकता है जिन पे आप गिव अप कर देते हैं, या जिन पे कोई एवरेज या मीडियोकर स्टूडेंट गिव अप कर देता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। सो दैट्स द गेम। हाँ, ये जरूर है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट को चूज नहीं कर सकते, है ना, जो हमको मिला है वही मिला है। क्या आप अपने एनवायरनमेंट को चूज कर सकते हैं? नोबडी कैन चूज देयर एनवायरनमेंट, एटलीस्ट अप टू अ सर्टेन एज दे कैन नॉट, ठीक है। आप 25 के हो जाएंगे, उसके बाद अपना बिजनेस करेंगे या कोई स्टार्टअप डालेंगे या कहीं पे नौकरी कर रहे हो, देन यू कैन मे बी रीडिफाइन सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, बट नॉट बिफोर दैट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट डेफिनेटली एक बड़ा रीजन है। अभी आप ये भी सोचिए ना कि उनके पापा ने इतना बड़ा चेंज लाया कि भाई साहब किसी फॉरेन कंट्री में जाकर मैं अपनी बच्ची को ट्रेन करवाऊंगा। अभी पेरेंट्स का भी सैक्रिफाइस सोचो आप, मतलब उसकी मम्मी ने इस चीज को मान लिया कि चलो एक बेटी में से दूर जा रही है किसी दूर दराज कंट्री में। हमारे यहाँ पे भाई साहब बेटी अगर 10 मिनट के लिए मतलब लेट हो गई तो धमाधम फोन कॉल जाए, किधर है किधर है किधर है ना। सो मे बी अंडरस्टैंड द सैक्रिफाइस लेवल। एनवायरनमेंट जो है वो सब पे। अभी आप इनके पापा का सोचिए, इसके बेटी को टॉप लेवल का स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए इन्होंने अपना गांव, अपना देश छोड़ दिया, कहीं दूसरी जगह जाकर मतलब पूरा टाइम काम कर रहे हैं, इतना काम कि बेटी तक से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं ताकि उसके ट्रेनिंग को सपोर्ट कर सके। दैट इज द डेडिकेशन। तो कभी कभी ऐसा एनवायरनमेंट जो है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मारिया का ही सब कॉन्ट्रीब्यूशन था, बट देयर पेरेंट्स ऑल्सो हैड मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। पूरा फैमिली भाई साहब बिखर चुका है ना। कहाँ माँ एक बेटी के साथ भाई साहब उधर पड़ी हुई है और कहाँ ये भाई साहब पापा जो है तो इस बेटी के साथ इधर है। आपको मैं बताऊं, जैसे आईआईटी और नीट के लिए जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, ये पेरेंट्स लोगों में मैंने देखा है, कुछ पेरेंट्स लोग आईआईटी और नीट के लिए जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो लोग कोटा जाते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर वहाँ कोटा में बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ। मतलब चल मैं तेरे साथ रहूँगा या मैं तेरे साथ रहूँगी, मम्मी हो पापा हो जो भी हो। दैट इज़ द लेवल ऑफ डेडिकेशन। भाई साहब जब आपको इतना सब मिल जाता है ना, तब आप भी घबरा जाते हो, यार हाँ आई कैन नॉट फेल नाउ, ठीक है, मैं फेल नहीं हो सकता, आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप नाउ, आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्लिप नाउ। इतना बड़ा आपका एक फोर्स आ जाता है। तो एनवायरनमेंट डेफिनेटली पुशेस। आपका एनवायरनमेंट, मैं बोलूँगा 80 से 90% आपका जो करियर बनता है किसी भी चीज़ में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे भाई साहब आपका स्टडीज़ हो, वो आपका एनवायरनमेंट की वजह से बनता है। लेकिन 20% जिम्मेदारी आपकी है, और इस 20% में काफ़ी सारा डिमांडिंग डेडिकेशन है, ठीक है। सो दैट वाज द स्टोरी अबाउट हर कि हाउ विद इन 9 years शी रीच्ड द टॉप। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। अमेरिकन एक्सेंट मतलब कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत उन लोग अपने आर को थोड़ा सा रोल करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। एक्सेंट मतलब किस तरह से एक भाषा को हम बोलते हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे भाई साहब यूपी का कोई इंसान कैसे हिंदी बोलता है और मुंबई का कैसे इंसान कोई हिंदी बोलता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारा फर्क है, ठीक है। जैसे मुंबई में भाई साहब सब कुछ गिर रहा है ना। मैंने किसी से भी अगर आप पता पूछोगे ये कहाँ है, इधर जाओ लेफ्ट में एक बिल्डिंग गिरेगा, उधर जाओ फिर लेफ्ट में राइट में एक दुकान आए गिरेगा, फिर उधर जाओ एक टावर गिरेगा, पता नहीं गिरेगा क्यों बोलते। मैं जब पहली बार मुंबई आया था भाई साहब क्या सब गिर रहा है क्या, ठीक है। बट दैट इज हाउ पीपल इन मुंबई बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड। बरोबर, ये बरोबर क्या होता है मुझे अभी तक नहीं मालूम। खैर, दीज आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज दैट आर देयर, ठीक है। आप किसी बिहारी को अगर हिंदी बोलते हुए देखेंगे या किसी यूपी वाले को हिंदी बोलते हुए देखेंगे या किसी महाराष्ट्रियन को अगर हिंदी बोलते हुए सुनेंगे, यू कैन बेसिकली मेक इट आउट, है ना, ये कहाँ से आ रहा है। लैंग्वेज एक ही है लेकिन बोलने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है, दैट हैपेंस।
सो एक्सेंट मतलब होता है किसी लैंग्वेज को बोलने का तरीका। अमेरिकन एक्सेंट इज अ डिफरेंट एक्सेंट ऑल टुगेदर, ठीक है। ब्रिटिश एक्सेंट, विनय मैंने वो दिया है करने के लिए, टाइम पास नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट। शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, ऑल्दो शी वाज ट्रेन्ड इन अमेरिका and she became an American citizen and an American player, but she is basically a Russian. Clearing all doubt, she says, I am Russian. It's true that the US is a big part of my life. लेकिन उसने अपने कंट्री का जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन किया। यूएस में उसने ट्रेनिंग हासिल की, ये बात और है, ठीक है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, ठीक है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी। अगर आज जो मैं विंबलडन जीत रही हूँ, शायद यूएस को रिप्रेजेंट करके जीत रही हूँ, लेकिन जिस दिन रशिया ने मुझे बोला कि भाई आप हमारी तरफ से ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट कीजिए, आई विल रिप्रेजेंट रशिया बिकॉज बाय ब्लड आई एम अ रशियन, ठीक है। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शरापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज आर हॉबीज। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनान डॉयल, ठीक है। ये बेसिकली एक शर्लक होम्स, किसी ने सुना है, ठीक है। शर्लक होम्स की एक सीरीज भी है, शर्लक होम्स क्या हुआ, ओके। शर्लक होम्स बेसिकली एक डिटेक्टिव सीरीज है और आर्थर कोनान डॉयल वाज द राइटर एक्चुअली शर्लक होम्स के, ठीक है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव फॉर पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। तो हालांकि शी वाज अ वेरी स्पोर्ट्स पर्सन। आप देखोगे ज्यादा करके जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनका डाइट इतना ज्यादा मतलब सूखा फूका होता है कि उनको ये केक्स देखेंगे तो बड़ा लालच आता है, उनको वैसा अगर कोई पिज्जा वज़ा देखेंगे तो बड़ा लालच आता है, कोल्ड ड्रिंक्स देखेंगे तो दे फील वेरी जो चीज़ें आप नॉर्मली खाते हैं उनको नहीं मिलता है खाने को। तो ऑब्वियसली बात है कि जब भी इन चीज़ों को देखते हैं तो उनके लिए एक ड्रीम सा होता है ये, ठीक है। सो दैट वाज द सेम थिंग एट ऑड्स विद अ लव फॉर पैनकेक्स एंड चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। सो दीज आर थिंग्स दैट शी वुड नॉट रिसीव ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, फॉर हेल्थ रीजंस। तो ये सब के लिए उसका एक बड़ा क्रेविंग था, ठीक है। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Pigeonholed मतलब क्या होता है? What is pigeonholed? Pigeonholed मतलब आप जैसे कैटेगराइज कर देते हो कि हाँ ऐसे टाइप के लोग, ऐसे टाइप के लोग, ऐसे टाइप के लोग, ए टाइप के लोग, बी टाइप के लोग, सी टाइप के लोग, इसमें आते हैं। लेकिन मारिया शरापोवा किसी टाइप की नहीं है, ठीक है। शी क्रिएटेड हर ओन लीग बोल सकते हैं, एक लेजेंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजनहोल्ड और कैटेगराइज्ड। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड। अनवेवरिंग डिजायर मतलब जिसमें जो इच्छा है उसमें कोई भी उल्टम पुल्टम ना हो, एकदम करना है तो करना है ऐसा। तो सैक्रिफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब जो रिचेस, जो पैसा उसको मिला है वो उसका ही मेहनत है। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Monetary gains मतलब obviously बहुत बड़ा पैसा लगता है इसमें, ठीक है। Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport. तो टेनिस भाई साहब एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है। But the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. So ये एक ड्रीम था जिसको मैं relentlessly pursue करती रही and finally I achieved it, ठीक है। So that was the story all about Maria Sharapova, ठीक है, and her journey to success. एक मिनट।